Welcome, dear students. Greetings of the day. Today we will discuss about integrated nutrient management. Whatever we discussed in a previous webinar class, that integrated means combined. When we use two or three substances simultaneously, that comes under the category of integrated. When we talk about integrated beet management, then we use three components. First, physical control, mechanical control, cultural control, biological control. So, three or four terms associated with this. If we will talk about integrated disease management and integrated insect management, then these four terms will also be applied in the same cases. But we will talk about integrated nutrient management or integrated plant nutrient management. In this system, we will not use physical, chemical, cultural, or biological method. In this method, in this system, we will use organic, vermicompost, organic compounds, vascular, avascular mycorrhiza, fungi, BAM. These type of substance now इस समय चल रहा है आपका जीवामित्रा, पंचगव्य. These type of substance we will use in integrated nutrient management. Nowadays, Jivamitra and Panchagavya are most popular in integrated nutrient management. So today we will discuss about the topic integrated nutrient management. Your class Agron E 421, the practical class crop production. Subject integrated farming system. This is your 26th video lecture and instructor myself Ankur Sharma, Assistant Professor Horticulture. So now we will start. Firstly, what is integrated plant nutrient management? IPNM क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं समन्वित पादप पोषण प्रबंध. इंटीग्रेटेड का मतलब पहले भी हम आपको वेबिनार क्लासेस में बता चुके हैं. Means compound use of 3 to 4 substances that will not harm or degrade your environment and gives you a healthy byproduct, nutritive byproduct, free from any hazardous chemical. So, the term integrated plant nutrient management is interpreted in the much broader, more holistic sense of land husbandry. जो इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटरप्रेटेड एक कनेक्ट है, एक तरीके से जुड़ा हुआ है एक बहुत बड़े सेंस में, जिसका ओवरऑल अप्रोच है, ओवरऑल मीनिंग है एक तरीके से लैंड हस्बेंड्री. जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री है उसी तरीके से लैंड हस्बेंड्री होता है. लैंड हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में हम करते हैं एक तरीके से पशुओं, पशुपालन, जानवरों का प्रबंध. इसलिए लैंड हस्बेंड्री यहाँ हम भूमि का प्रबंध करते हैं. इट थस embraces सॉइल. इसके साथ साथ ये सॉइल की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी को मेंटेन करता है. न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व उसके बढ़ाता है. वाटर, क्रॉप एंड वेजिटेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो ये सॉइल को एम्ब्रेस करने के साथ साथ उसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ उसमें वाटर, क्रॉप और जो वेजिटेशन है उन सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है. वानस्पतिक आच्छादन, वेजिटेशन जो आपका ग्रीनिंगनेस होती है उसको भी इम्ब्रेस करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, अच्छा करने का काम करता है. Tailored to a particular cropping and farming system, undertaking with the aim of improving and sustaining soil fertility and land productivity and reducing environmental degradation. सबसे बड़ा अगर हम कॉज बताएं, सबसे बड़ा अगर हम कारण बताएं कि हम इंटीग्रेटेड के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आखिर हर एक चीज़ के अप्रोच में हम इंटीग्रेटेड के पास क्यों जा रहे हैं. इंटीग्रेटेड के पास जाने का केवल मतलब ये है कि आजकल आप देख रहे हो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल और हजार्डस फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, जिससे जो हम रासायनिक खादों का
खरपतवार नाशियों, बीडीसाइड्स का, फंजीसाइड्स का अपनी फसल पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आज हमारी सेहत पर उसका बहुत बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। आप ह्यूमन बॉडीज़ में देख रहे हैं लोगों में मोटापा, कम समय में किसी की आंखों में चश्मा लग जाता है, किसी को चक्कर आने लगते हैं, किसी को कमजोरी महसूस होने लगती है, किसी को असमय गर्भपात हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या है कि जैसा हम खाते हैं वही चीज़ें हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलती। इसलिए इन हजार्डस केमिकल्स से, इन हजार्डस फर्टिलाइजर्स से किस तरीके से ह्यूमन बॉडीज़ को एक बैलेंस वे में रखा जाए और उसके साथ साथ हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने से बचा सकें, इसलिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू हमने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। तो ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करते हुए हमारे साथ साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इसके साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाते हुए रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और वातावरण को, एनवायरनमेंट को बिना डिग्रेड किए हुए अपना काम करते हैं। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पादप पोषण प्रबंध एम्स टू ऑप्टिमाइज, उसका उद्देश्य है बढ़ाना द कंडीशंस ऑफ सॉइल। जो सॉइल की कंडीशन है, चाहे वो फिजिकल कंडीशन हो, चाहे केमिकल कंडीशन हो, चाहे बायोलॉजिकल कंडीशंस हो, इन तीनों कंडीशंस को इम्प्रूव करने के साथ साथ विद रिगार्ड्स टू इट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो जैविक हो, और इसके साथ साथ चाहे वो जलीय हो, हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, इन सबको बैलेंस करके उसके पीएच को भी कंट्रोल करने का काम करता है, उसके पीएच को भी बढ़ने नहीं देता। फॉर द पर्पज ऑफ enhancing farm productivity with minimizing land degradation, इसके साथ साथ उसका सीधा उद्देश्य होता है कि फार्म की जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ लैंड के डिग्रेडेशन को, उसको अल्कलाइन होने से, उसको ऊसर होने से, उसको क्षारीय होने से बचाया जा सके। क्योंकि हम एक समय में जब किसी लैंड से विद द यूज़ ऑफ एक्सेस हजार्डस फर्टिलाइज़र हम अगर यूज करते रहेंगे तो एक समय तक हमको उत्पादन अच्छा मिलता रहेगा, पर आप ये ध्यान रखना कि वो जो लैंड में आप एक्सेस फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं, हजार्डस पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं, एक ना एक दिन उसकी जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाएगी, कैपेबल नहीं रहेगी किसी भी तरीके के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें लैंड डिग्रेडेशन से भी बचाना है, एनवायरनमेंट को भी डिग्रेडेट नहीं करना है, ह्यूमन हेल्थ को भी हमको प्रभावित नहीं करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए आए हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है और ज़्यादातर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम इंटीग्रेशन पे ही ध्यान दे रहे हैं। There is now greater awareness that integrated plant nutrient management can not only provide tangible benefits in terms of higher yields, but simultaneously and almost imperceptibly conserve the soil resources itself. There is now इन दिनों ग्रेटर अवेयरनेस, एक बहुत बड़ी जागरूकता चल रही है समन्वित पादप पोषण प्रबंध में, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, कि वो केवल आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड नहीं करता हायर यील्ड्स के टर्म्स में, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में ही केवल एक टेंजिबल, मतलब 22 वर्षा गिव एंड टेक, ऐसा बेनिफिट्स आपको हायर यील्ड को देने में प्रोवाइड नहीं करता। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ये कंजर्व द सॉइल रिसोर्सेस, जो सॉइल रिसोर्सेस हैं हमारे, चाहे वो हमारे
सूक्ष्म जीवाणु हो, चाहे हमारी कार्बनिक खाद हो, ठीक है। इसके साथ साथ चाहे जल जंगल जमीन जलवायु जीव जंतु, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हो, उन सबको कंजर्व करने का काम करता है। तो हम इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम की कड़ी को केवल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के साथ साथ नहीं जोड़ सकते, अपितु वरन हम इसको अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए बचा सकते हैं, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जल जंगल जमीन जलवायु जीव जंतु, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। द फील्ड लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस considered under the heading of integrated plant nutrient management would include the use of farmyard manures, natural and mineral fertilizers. द फील्ड लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो ग्राउंड लेवल पे की जाती हैं आपके खेतों में, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, कंसीडर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ, उनको इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हेडिंग के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। वुड इंक्लूड, जिनमें किया जाएगा द यूज़ ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, जो आपके गोबर की खाद होती है, जो FYM होती है, जिसमें 0.5, 0.25 और 0.5 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पाया जाता है, और नेचुरल और जो मिनरल फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी इसके साथ साथ यूज किया जाता है। साथ साथ सॉइल अमेंडमेंट्स, जो सॉइल अमेंडमेंट्स होते हैं जो मृदा को सुधारने का काम करते हैं, जैसे आपका जिप्सम हुआ, चूना हुआ, CaSO4, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लैंड को डिग्रेड होने से बचाते हैं, लैंड को इनफर्टाइल होने से बचाते हैं, उनको सेव रखते हैं। क्रॉप रेजिड्यूज़, जो प्रीवियस क्रॉप्स के रेजिड्यूज़ होते हैं, उनको भी उस फील्ड में इरिगेशन करके, डिकम्पोज करके, उनको भी हम ऑर्गेनिक मैनर्स के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। जो रेजिड्यूज प्रीवियस क्रॉप्स के होते हैं, सपोज़ करिए कि अगर हम आज वीट की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वीट की कल्टीवेशन के पहले खरीफ में हमने राइस को बोया होगा, तो राइस के कुछ स्टबल्स और कुछ रेजिड्यूज जो होते हैं, उस फील्ड में हम इरिगेशन करके उन रेजिड्यूज को, उन स्टबल्स को डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉइल अमेंडमेंट्स, क्रॉप रेजिड्यूज एंड फार्म वेस्ट में भी आपके रेजिड्यूज, स्टबल्स, डेड एंड डिकेड स्टबल्स वगैरह जो होते हैं प्रीवियस क्रॉप्स के, उनको ही हम जो है फार्म वेस्ट में रखते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री एंड टिलेज प्रैक्टिसेस, ग्रीन मैन्योर्स, कवर क्रॉप्स, लेग्यूम्स, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशंस, फेलोज, irrigation, drainage, plus a variety of other agronomic, vegetative and structural measures designed to conserve both water and soil erosion. इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये तभी इसको होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है कि इसमें हम लेग्यूम्स को भी शामिल करते हैं, कवर क्रॉप्स को भी शामिल करते हैं, ग्रीन मैन्योर्स को भी शामिल करते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी हम करते हैं, क्रॉप रोटेशंस को भी हम अडॉप्ट करते हैं। खेत को हम खाली भी छोड़ देते हैं, परती छोड़ दिया, खेत को अगर हम खाली छोड़ रहे हैं तब भी हम न्यूट्रिएंट को कंजर्व कर रहे हैं सॉइल में। इरिगेशन भी डिपेंड है, ड्रेनेज भी डिपेंड है। इसके साथ साथ उन चीज़ों को भी इसमें रखा गया है कि हम एग्रोनॉमिकल किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, वेजिटेटिव एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स जो डिज़ाइन किए गए हैं वो भी आपके वाटर और सॉइल को कंजर्व करने का काम करते हैं। इसीलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच का नाम दिया गया कि इसमें एक नहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी समाहित होती हैं जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे और भी जो पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल डिग्रेडेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, इन सब से जुड़े हुए हैं। उन सब चीज़ों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के एक छोटे से ओवरव्यू को हमने समझने की कोशिश की है। इन छोटे से ओवरव्यू के बाद में हम तीसरे पीपीटी के वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के रूप में हम आपको दर्शाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने घरों में रह के सुरक्षित रहें।